کے پی ہاؤس ڈی سیل نہ کرنے کا معاملہ، ڈائریکٹر سی ڈی اے کے خلاف توہین عدالت دائر، عدالتی حکم بتانے کے باوجود اس پر کوئی توجہ نہ دی گئی، عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا، درخواست گزار کا موقف، درخواست میں متعلقہ فریق کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی استدعا۔ آئینی ترمیم سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ شیئر کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175 سے آئینی ترمیم عدالت کا قیام شامل ہے۔ آرٹیکل 175 اے، بی، ڈی، ای، ایف میں ترامیم کی تجاویز شامل ہیں۔ وفاق میں آئینی عدالت قائم ہونی چاہیے، صوبوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ مسودے کا متن۔ تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی درخواست، سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کی جانب سے التوا مانگنے پر ناراضگی کا اظہار، پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کی جانب سے دائر التوا کی درخواست بھی مسترد، پی ٹی آئی کی جانب سے التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے، کیس ملتوی کر دیتے ہیں، مگر سچ تو بولا جائے، انصاف کے تقاضوں کے تحت کیس ملتوی کر رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 231 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا معاملہ، الیکشن کمیشنر کے ریجنل دفتر میں ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، نقاب پوش بیلٹ پیپرز لے کر فرار، الیکشن کمیشن سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، قانونی کارروائی کا حکم، معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل، جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر کو واقعے کی رپورٹ چیف الیکشن کمیشن کو ارسال کرنے کی ہدایت، ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا معاملہ ایک ہفتے کے لیے روک دیا گیا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی نے اپنا مسودہ کمیٹی میں پیش کر دیا، بلاول بھٹو نے آئینی ترامیم کے حوالے سے ارکان کو اعتماد میں لے لیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ہم سب کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے لچک دکھانا ہوگی، یہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے اہم قانون سازی ہے، اس میں کسی ایک شخص کو فائدہ دینے والی کوئی سوچ نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ہیجان کی کیفیت پیدا کم از کم ختم ہو گئی ہے، آج کافی تجاویز آئیں، کل پھر اجلاس ہوگا۔ فتنہ الخوارج اور کالعدم پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، کارندوں کی ہور شبہ کال منظر عام پر، خارجی طارق محمود اور کالعدم پی ٹی ایم کارندے کی خفیہ کال میں گھناؤنے عزائم آشکار، میری خواہش ہے کہ جرگے میں شرکت کروں، پختون بھائیوں کو بتانا کہ ہتھیار، سیاستیں اور دھرنے مل کر کریں، پنجابی اور دوسری قوموں کو اپنے علاقے سے نکال دیں، خارجی طارق محمود عرف ابو حشام کی خفیہ کال میں گفتگو، دفاعی ماہرین نے کال کو غیور پشتونوں کو ورغلانے کی سازش قرار دے دیا۔ توشہ خانہ نااہلی کیس، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دے دی، الیکشن کمیشن کے وکیل شہزاد شوکت بیرسٹر علی ظفر کے دیے گئے ریفرنس سے لاعلم، پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے لاہور ہائی کورٹ کے جس عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا اس سے آگاہ نہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل شہزاد شوکت کا موقف، عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو 2 ہفتوں میں تیاری مکمل کرنے کا وقت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کے حلقے این اے 231 کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا پیپلز پارٹی پر الزام، پیپلز پارٹی کے غنڈے نے الیکشن کمیشن کے دفتر میں سارا ریکارڈ جلا دیا، آج الیکشن کمیشن میں بیلٹ باکس اور دیگر ریکارڈ بھی جلائے گئے، پیپلز پارٹی کے افراد میرا لیپ ٹاپ بھی چھین کر لے گئے، ہار کے خوف سے پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن دفتر پر دھاوا بولا، پی ٹی آئی کے امیدوار ایڈوکیٹ خالد محمود پر تشدد بھی کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان، مری گلیات میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش متوقع،
सिंध शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पाकिस्तान के सीनियर लेजेंडरी अदाकारा आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार कुछ अरसे से बीमार थे। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में अदाकारी किए जौहर दिखाए। मरहूम ने सोगवार में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत। रूस और चीन के वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म मिखाइल व्लादिमीर पुतिन मशहूर स्टंट की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग भी एक आला सतह वफ़द के हमरा 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क से आने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली दस्तावेज़ात पर सफर करने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम काशिफ अली ने $250 के एवज मज़कूरा जाली वीज़ा हासिल किया। मुलजिम का ताल्लुक कराची से है। मज़ीद तफ्तीश के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल। जुलूस निकालो, डंडे मारो। अब ये हैसियत रह गई है कि वकला की चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अराजी केस की समाअत के दौरान वकील पर बरहम। दरखास्त में कहा दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं। शायद तहरीर करना रह गया होगा। दरखास्त गुजार वकील का मौक़िफ़, आप दूसरों पर तनकीद तो करते हैं लेकिन अपने गिरबान में भी झांके। जज बात कर रहा हो तो हम मुदाखलत का सोच भी नहीं सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शान मसूद एक बार फिर फेल। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 1 इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान दूसरे इनिंग्स में 220 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस के सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। खत्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पाक सऊदीया ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के लिए ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर मुसल्लह अफराद के हमले, 20 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हमला आवरों ने 10 कोयला कारकुनों के इंजन भी आग लगाकर नजर आतिश कर दिए। हमले में भारी असलहा, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए गए। जाँ बहक मजदूरों को मुख्तलिफ कोयला कानों से टोलियों की शक्ल में यकजा करके फायरिंग की गई। मरने वालों में 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान, 3 का पशीन, 1 का कचराग, 4 का किला सैफुल्ला, 4 का योब और 1 का लोरालई से है। दुखी में कारकुनों पर मुसल्लह अफराद का हमला, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत दीगर की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अयाज सादिक बोले कि हमले में मुलविस दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। मरीम नवाज की सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी।
वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने दुकी में मजदूरों के कत्ल के वाक़े पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, दहशतगर्दों ने एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी। मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। एक एक बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेंगे, ये लहू रायगा नहीं जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कारकुनों के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि गरीब मेहनतकशों को कत्ल करना बुज़दिलाना फेल है। मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे, दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाकर ही दम लेंगे। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को खत लिख दिया। आईनी तरमीम, रहनुमा PTI असद कैसर का नया इंकशाफ। अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश का दावा कर दिया। अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है कि 20 करोड़ की ऑफर की जा रही है, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए कि जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब के PTI पर ताबड़तोड़ हमले। अज़मा बुखारी ने PTI के सोशल मीडिया सार्फिन पर इदारों को धमकाने का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI ने प्रोपेगेंडा के लिए बाकायदा ग्रुप बना रखे हैं। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक और सयाने हैं। ये कहते हैं हमारे घरों पर छापे मारे जाते हैं। PTI के प्रोपेगेंडा सेल को 500 सिम्स दी गई हैं। ये 500 सिम्स खिदमत खल्क नहीं, फसाद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कल दीगर सियासी जमातों के साथ न होते तो मनफी तासुर जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया। कहा कि हम हमेशा अमन और मुज़ाकरात की बात करते हैं। सूबे में अमन के लिए अपनी सियासत को एक तरफ रखा है। गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग का 1 पॉइंट एजेंडा अमन का क़याम था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मंजूर पश्तीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा, विफाकी हुकूमत से इख्तियार मांगा, पश्तूनों का मुकदमा मैं लड़ूंगा। जिरगा पश्तून रिवायत है, अमन के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए दवा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निफाज 12 अक्टूबर तक रहेगा। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफा 144 मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरावाला, बिहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में नाफिज की गई। फैसला मुतालिका अजला की इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया है। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में हलाक हो गए। CTD का कहना है दहशतगर्दों को थ्रेट अलर्ट पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन और अयाज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दासू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी।